King then Resendal meets Black Michael and Princess Flavia. For the first time, the princess tells him that she finds him rather different. Now, in chapter number 6, Resendale is crowned King Rudolph the Fifth. Okay, so the people of the new town give the king rousing welcome. In this chapter, you will come to know that के यहाँ पे जो है वो king जब वो यानी Resendale जब king उसको बना दिया जाता है, सो जो है वो वहाँ पे जो है वो उसको जो टाउन के जो लोग होते हैं लोकल, दे वेलकम टू हिम. There is hardly any trouble in the old town. They don't. He didn't have to face any kind of trouble at that moment because they all thought that के वो जो है वो basically real king ही है. ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे उसको बड़ी जो है respect मिलती है. Resendale rides bravely down the streets and wins the hearts of the townspeople. Resendale जो है वो अपनी तमाम जो है वो जो यानी उसकी जब क्राउन कर दिया जाता है तो वो उसको वहाँ पे लोगों के जो है वो दिल जीतने में बहुत आसानी होती है और लोग उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं. The procession stops at the cathedral for the coronation. Resendale is crowned king. The Resendale meets Black Michael and Princess Flavia for the first time. The princess tells him that she finds him rather different. यहाँ इस चैप्टर में जो है वो उसकी मुलाकात ब्लैक माइकल से भी होगी और प्रिंसेस फ्लेविया से भी होगी. ठीक है, और प्रिंसेस फ्लेविया जो है वो उसको बताएगी कि उसको काफी जो है वो मुख्तलिफ महसूस हुआ है कौन किंग. ठीक है, क्योंकि प्रिंसेस डिड नॉट नो अबाउट दैट कि Resendale is not a real king. ठीक है. Now in the chapter number 7, yes, who is going to read the chapter number 7? Please. पढ़ ले भाई, कोई भी पढ़ ले. पढ़े, आप पढ़े. Black Michael leaves for Zenda. Both Sept and Resendale also leave for Zenda. They use a secret passage to leave the palace. They ride towards Zenda. Along the way, they see Duke Michael and Max Holf, John's brother, ride towards the castle. At the lodge, Resendale and Sept find the cook missing and Joseph dead. The king is missing too. Black Michael leaves for Zenda. Both Sept and Resendale also leave for Zenda. ठीक है, अब Black Michael इस chapter में you will come to know that basically the title of this chapter is Where is the King, because the king is lost. ठीक है, so they are going to find the king. Black Michael leave for Zenda. Black Michael भी जो है वो Zenda के लिए रवाना हो गया है, and Colonel Sept and Resendale are also left for Zenda. ठीक है. They use secret passage to leave the palace. वो चूंकि because Resendale is a king, so they have to use a secret passage. उनको यानी कि एक खुफिया रास्ता जो है वो अपनाना पड़ा बाहर निकलने के लिए ताकि वो पैलेस से बाहर आ सकें. They ride towards Zenda और वो Zenda की तरफ रवाना हो जाते. Along the way they see the Duke Michael and Max Hoff ride towards the castle. और इसी दौरान वो ये भी देखते हैं कि ड्यूक माइकल और मैक्स हॉफ, ठीक है, वो जो है वो कैसल की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. At the lodge, Resendale and Sept find the cook missing and Joseph dead. The king is missing too. ठीक है. फिर उनको ये बात भी पता चलती है कि वो जो कुक वहाँ पे उसको जो यानी कि किंग के लिए रखा गया था वो भी वहाँ से मिसिंग है और किंग भी वहाँ से जो है वो गायब है. ठीक है. So king is lost in the chapter number 7. Move on to chapter number 8. Yes, who's going to read chapter number 8? Yes, please read. First bench. Sept realized the Duke Michael has captured the king. Sept tells Resendale that he has to continue playing the part of the king until the king is saved. 8 of Black Michael men arrive to bury Joseph's body. Sept and Resendale attack and kill 3 of them. A bullet hit Resendale's hand, injured one of these killers. Now in the chapter number 7, Sept realizes that Duke Michael has captured the king.
यहाँ पे जो है कर्नल सेप्ट को इस बात का अंदाजा होगा कि ब्लैक माइकल यानी ड्यूक माइकल ने जो है वो किंग को जो है वो अपने कब्जे में लिया हुआ है. सेप्ट टेल्स रिजेंडाइल दैट ही हैज टू कंटिन्यू प्लेइंग द पार्ट ऑफ द किंग अंटिल द किंग इज सेव्ड. ठीक है, यहाँ पे सेप्ट जो है वो बेसिकली रिजेंडाइल से ये बात कहता है कि जब तक के किंग को बचा नहीं लिया जाता उस वक्त तक जो है वो रिजेंडाइल हैज टू प्ले द पार्ट ऑफ किंग. ठीक है, ही हैज टू प्रिटेंड दैट ही इज अ किंग. ठीक है. 8 of Black Michael's men arrive to bury Joseph's body. Sept and Rizendile attack and kill 3 of them. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे होता है कि 8 of Black Michaels जो मैंने पहले भी बताया था आपको, वो जो है वो जोसेफ जो कि मारा जाता है. पिछले हमने उसमें देखा था यानी चैप्टर के अंदर कि कुक मिसिंग होता है, जोसेफ डेड होता है और किंग भी मिसिंग होता है. तो उसमें जो जोसेफ डेड हो जाता है यानी मर जाता है तो उसको जो बाकी जो ब्लैक माइकल के जो 8 जो गार्ड्स हैं उसको दफना रहे होते हैं. सेप्ट एंड रेजेंडाइल एंड किल 3 ऑफ देम. उसी दौरान जो है सेप्ट और रेजेंडाइल उसको जो है वो उनमें से जो 3 होते हैं उनको मार देते हैं. अ बुलेट हिट्स रेजेंडाइल्स हैंड इंजरिंग वन ऑफ हिज फिंगर. इसी दौरान जब वो लड़ रहे होते हैं तो उसी में उनकी जो है वो यानी रेजेंडाइल जो होता है उसके ऊपर एक हमला होता है. तो वो उस हमले के नतीजे में उसकी जो फिंगर है यानी कि उसकी जो उंगली है वो क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है. ठीक है, मगर वो सेफ रहता है फिर भी. ठीक है. इसके बाद चैप्टर नंबर 9, द टाइटल इज फेमस 6. यस, हु इज गोइंग टू रीड इट? प्लीज रीड फर्स्ट बेंच फ्रॉम द लेफ्ट साइड. यस, यस मैम. Regendile and Sept reaches Chelsea safely. Regendile carries out the king's duties. Fates inform them that Black Michael is back in Chelsea. Only 3 of Black Michael's famous 6 are with him. Sept believes that the king is alive and that is the rest of the famous 6 are guarding him. Regendile leaves for an appointment with Princess Flavia. Fine. Rizendile Sept reaches his Chelsea safely. Rizendile carries out king's duties. अच्छा, अब ये सब होने के बाद चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो है वो हमें पता चलेगा कि रिजेंडाइल जो है वो एंड सेप्ट वो दोनों जो है सेफली जो है वो स्टेल्सॉ पहुंच जाते हैं वापस. रिजेंडाइल जो है वो अपनी जो ड्यूटीज होती हैं किंग की वो अदा करना शुरू कर देता है. फ्रिट्स इन्फॉर्म्स देम दैट ब्लैक माइकल इज बैक इन स्टेल्सॉ. ठीक है, फ्रिट्स उनको इस बात से भी आगाह करता है कि ब्लैक माइकल भी जो है वो स्टेल्सॉ. Only 3 of Black Michael's famous 6 are with him. और ये भी पता चलता है कि उसके जो बाकी के 8 में से जो 6 गार्ड जो है वो उसके साथ मौजूद हैं. ठीक है. Sept believes that king is alive and that the rest of his famous 6 are guarding him. अच्छा, सेप्ट को इस बात का पूरा यकीन होता है कि किंग जो है वो सेफ है और जो उसके जो गार्ड्स हैं वो उसको यानी कि 6 जो फेमस हैं वो बेसिकली उसको गार्डिंग यानी उसकी रखवाली कर रहे हैं. रिजेंडाइल लीव्स फॉर एन अपॉइंटमेंट विद द प्रिंसेस फ्लेविया. अच्छा, इसी चैप्टर के अंदर में ये पता चलेगा कि रिजेंडाइल जो है वो ही हैज एन अपॉइंटमेंट विद प्रिंसेस फ्लेविया, तो उससे मिलने चला जाता है. ठीक है. नाउ रीड द चैप्टर नंबर 10. यस, नेक्स्ट टू. Regendile meets Black Michael and 3 of the famous 6. Regendile and Fritz ride off to Princess Flavia's house. Princess Flavia's house. Regendile realizes that he is love with the princess. He knows that it is wrong as he is not the true king. Princess Flavia is pleased to meet Regendile, unaware that he is not the real king. Duke Michael also calls on the princess. Regendile makes Duke Michael angry when he unknowingly kept Duke Michael waiting to see the princess. Okay. Yes. Duke Michael introduces Regendile to the 3 men who are part of the famous 6, Versonin, Degotted, and Dechard. Yes. Can you explain what is going on in this chapter? What's your name? Wajia Khalid. Yes. Can you explain it? And what is going on in this chapter? I can try. Yeah. Regendile and Fritz ride off to Princess Flavia's house. Regendile और Fritz जो है वो Princess Flavia के घर की तरफ जाते हैं. Regendile realizes that he is love with the princess. वहाँ पर Regendile को realize होता है कि उसे Princess Flavia से love है. He knows that it is wrong as it is not the true king. वो उसे पता होता है, वो जानता है कि ये गलत है क्योंकि वो true king यानी सही king नहीं है. Princess Flavia is pleased to meet Regendile. Princess Flavia जो है
वो खुश होती है प्रेजेंटाइल से मिलके, अनअवेयर दैट ही इज नॉट द रियल किंग। उसे ये नहीं पता होता कि वो रियल किंग नहीं है। ड्यूक माइकल ऑल्सो कॉल्स ऑन द प्रिंसेस। ड्यूक माइकल भी प्रिंसेस को बुलाता है। Rosendal makes Duke Michael angry when he unknowingly kept Rosendal makes Duke Michael angry when he unknowingly kept Duke Michael waiting to see the princess. Yes. Rosendal makes Duke Michael angry when he सही है लाइन। रिजेंडाइल मेक्स ड्यूक माइकल एंग्री, यानी ड्यूक माइकल को रिजेंडाइल को देखकर जो है वो यानी एंग्री होता है, गुस्सा आता है, ठीक है। ही अननोइंग केप्ट ड्यूक माइकल वेटिंग टू सी द प्रिंसेस। उसको ये बात मालूम नहीं होती कि रिजेंडाइल भी जो है वो वहां पे किससे मिलने आया हुआ है, प्रिंसेस से। यस। ड्यूक माइकल इंट्रोड्यूसेस रिजेंडाइल टू द थ्री मैन हु आर पार्ट ऑफ द फेमस सिक्स। ड्यूक माइकल रिजेंडाइल को तीन आदमियों के बारे से मिलवाता है, हु आर पार्ट ऑफ द, वो जो फेमस सिक्स जो होते हैं उनके तीन से मिलवाता है, जो कि बस जिसमें एक बर्सोनीन होता है, एक डिगॉर्डेड होता है और एक डिचार्ड होता है, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर विल कम टू नो दैट कि रिजेंडाइल और फ्रिट्ज जो है वो फ्लेविया से मिलने उसके घर जाएंगे। वहाँ पे जो है वो बेसिकली रिजेंडाइल रियलाइजेस दैट ही इज इन लव विद प्रिंसेस। उसको वहाँ पे इस बात का एहसास होगा कि ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन प्रिंसेस। ही नोज दैट इट इज रॉन्ग। उसको ये बात भी मालूम होगी कि ये बहुत गलत है, क्योंकि ही इज नॉट अ रियल किंग, बिकॉज लीगली प्रिंसेस जो है वो किसका हक है, रियल किंग का, ठीक है। तो रिजेंडाइल इज नॉट अ रियल किंग, ठीक है, रिजेंडाइल रियल किंग नहीं है, सो डेफिनेटली इट्स रॉन्ग, इट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। प्रिंसेस फ्लेविया इज प्लेस्ड टू मीट रिजेंडाइल अनअवेयर दैट ही इज नॉट रियल किंग। प्रिंसेस फ्लेविया को भी इस बात का आइडिया नहीं होगा, यानी उसको पता ही नहीं है ये बात कि वो रियल किंग नहीं है, ठीक है। ड्यूक माइकल ऑल्सो कॉल्स ऑन प्रिंसेस रिजेंडाइल। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया था, ठीक है। और वहीं पे जो है वो ड्यूक माइकल रिजेंडाइल को अपने जो थ्री मैन होते हैं उनसे जो है वो थ्री ऑफ फेमस सिक्स, ठीक है, उनसे जो है वो उसकी मुलाकात करवाता है और इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। Now the next chapter, chapter 11. So now you are finding in this activity जो मैं भी आपको करवा रहा हूँ, basically in this activity you are basically learning that कि how easy is to read the novel with the help of summary, ठीक है। हम कितनी आसानी से जो है वो with the help of summary we can understand the basic idea of the novel, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें, थोड़ी थोड़ी दिमाग में आपकी प्लॉटिंग हो रही है नॉवल की। So when you go to the main reading, then definitely it will help you out to understand the novel clearly, ठीक है। जब आप इस चीज को पढ़ लेंगे तो because you have a plot in your mind, you know a few things about the novel, ठीक है, the basic things that you have to know, जब आपको पता होंगी then you will be able to read the novel very easily, ठीक है। I don't know कि आप लोगों ने ये एक्टिविटी घर पे जाके की थी या नहीं की थी। Did you get time to do this activity? Yes or no? नो। बहुत मुश्किल होता है जिंदगी में पढ़ाई के लिए वक्त निकालना। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू टेक आउट सम टाइम फ्रॉम आवर डेली रूटीन टू रीड समथिंग। एज आई टोल्ड यू दैट रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है भाई। सुनने से तो जो है ना, सुनने से वाह वाह आती है, ठीक है। जब आप सुनते हैं ना लेक्चर को तो बड़ा मजा आता है भाई, वाह वाह सर ने तो बड़ा जबरदस्त बताया माशाल्लाह, आज तो वही मजा आ गया पढ़ने में। बट द मेन थिंग इज दैट लिसनिंग इज नॉट ओनली द वे बाय विच यू कैन लर्न थिंग्स, रीडिंग इज द वे, ठीक है। रीडिंग से फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, सही है। अब ये तो चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ वो अपने एंगल से भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी इसमें अपनी भी जो है वो एक इंटरप्रिटेशंस होंगी चीजों में। But when you read things, you have your own interpretations, ठीक है। You will have your own interpretations, then you will interpret the novel in your own ideas, ठीक है। Most probably you will agree or you disagree with the ideas. हो सकता है आप agree कर जाएं कुछ ideas से, आप उससे disagree कर जाएं। हो सकता है कि जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई Rosendal realizes that he's in love with the princess, अब आपके नजदीक most probably आप बोलें भाई इसमें क्या हुआ, it's a human nature, भाई हो गया तो हो गया, ठीक है। इसी तरह और भी कोई बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आप यू कैन डिसएग्री विद द पॉइंट, आप अग्री और डिसएग्री भी कर सकते हो। सो व्हेन यू रीड इट
डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग कम्स टू यू, आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। आ रही है बात समझ में? पता नहीं कितने लोग अग्री करते भी हैं इन बातों से, यानी कि हमें रीडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ आपकी कोर्स बुक की रीडिंग की कभी बात नहीं करता, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द रीडिंग्स यू शुड डू ऑन द डेली बेसिस ऑफ एनीथिंग व्हाटएवर इंटरेस्ट यू। आपको कोई भी चीज़ जो इंटरेस्टेड लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, उसको आप रीड आउट करें एंड मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो वाकईतन, मुझे पहले तो एक दफा मैं पहले भी ये सवाल पूछ चुका हूँ बॉस, अब उस टाइम के बाद कितने लोगों ने कोशिश की कि हम जो है वो चलें भाई, सर ने बताया है थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी सी स्टार्टअप लिया और कहा कि भाई नहीं चलो भाई, यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना चीज़ों को तो आपको, एक तो सबसे पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा ये बता रहा हूँ कि भाई देखें, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड, और इफ़ यू रियली वांट टू बिकम मास्टर इन रिटन एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लिश, सो यू हैव टू रीड थिंग्स। रीडिंग करना शुरू करते हैं, अनकॉन्शियसली थिंग्स विल कम टू यू, आपको चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएंगी एंड यू विल नॉट गोइंग इनटू द डीप ऑफ ग्रामर। आपको ग्रामर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू विल बी एबल टू राइट वेल। Simply a secret of success. It's a secret of success. Reading is the simplest way or the secret of success. Reading से आपको अंडरस्टैंडिंग भी आती है चीज़ों को, प्लस आपको आपकी लैंग्वेज पे जो कमांड है वो भी आपको होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो भाई स्टार्ट कर लें जो चीज़ें। अब ये देखें, स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी भी आपके पेपर होने में तकरीबन अच्छा खासा टाइम बाकी है। तो मैंने तो आपको ईजीएस्ट वेज बताए हैं कि जिस तरीके से आप अपनी रीडिंग को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आई नो द लेवल ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, ठीक है। आई नो दैट थिंग्स आर नॉट ईजी फॉर यू बिकॉज लैंग्वेज इज चैलेंजिंग हेयर, बिकॉज यू आर हेयर studying or reading the original text of English literature, ठीक है, where you'll read novel Prisoner of Zenda, where you will read the essays of Einstein, ठीक है, where you will read the philosophy of Bertrand Russell। तो ये इतनी आसान नहीं होती, आई नो दैट कि वहाँ पे लैंग्वेज भी चैलेंजिंग है और वहाँ पर आपकी जो आइडियाज हैं वो भी वो बच्चों वाले आइडियाज नहीं है। यू हैव टू वर्क आउट ऑन दैट अगर आप उसको समझना चाह रहे हैं। बाकी पेपर तो ऑब्वियसली सी बात है, डोंट वरी अबाउट इट, पेपर तो निकल जाना है, वो तो रट्टे मार के निकल ही जाना है, किसी भी तरीके से नोट्स मिल जाने हैं और वो सवाल मिल जाने। बट द थिंग इज दैट के आई शुड बी एबल टू टीच द सेम थिंग टू समवन एल्स, ठीक है। किसी और को भी मैं इतना काबिल हूँ कि मैं उसको खड़े होकर बाद में जब मैं पढ़ लूँ तो उसको पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चीज़ों। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? वक्त निकालना पड़ेगा। वक्त निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपना दिमाग तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हिम्मत करनी पड़ेगी। तो पहले हिम्मत करें, वक्त निकालें, वक्त निकालने के बाद रीडिंग करें, रीडिंग करने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आपको समझ में आने के बाद चीज़ें आप उसको जो है वो यू विल बी एबल टू टीच समवन एल्स, ठीक है। नींद आ रही है? संडे को बुला लेते हैं सर आप, हाँ, इतना अच्छा और गोल्डन डे होता है हमारे लिए और आप जो है वो जल्दी उठ जाते हो। अच्छा ठीक है, अच्छा फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 11। स्टिल वी हैव 10 मिनट्स, तो हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सॉरी 11, या हु इज गोइंग टू रीड द चैप्टर नंबर 11? यस, फ्रॉम दिस साइड, यस प्लीज रीड। आप दोनों में से कोई एक पढ़े। अम्मात, यस अम्मात। चलो भाई जल्दी करो, रीडिंग करना नहीं आती क्या? है? पढ़ लो भाई, मैं पढ़ लूँ। हाँ। Need a pin drop silence. Castle. Zendaya received a letter from Yes, Anthony D. Mubin. Anthony Mubin. She wants him to meet her as she has information that might save him. Zendaya meets Meets Anthony. Anthony, not
यस एंटनी पढ़े इसको, पढ़े। Antony, यस she say that ड्यूक Michael, ड्यूक माइकल। Duke Michael forced her to write the letter. She tells Resendale about the Duke's plan to take over the throne and marry Princess Flavia. She Hmm. यस she urges she urges him to lead to once because three of the famous six are on their way there to kill him. They arrive and fight break out. Resendale escapes unhurt. Fine. Sapt informs Resendale that king is being held prisoner in Zenda Castle. सैप जो है वो रेजेंडाइल को इस चैप्टर के अंदर इन्फॉर्म करेगा। यू विल कम टू नो इन दिस चैप्टर दैट सैप विल इन्फॉर्म टू रेजेंडाइल अबाउट दी अबाउट द किंग। उसको बताएगा कि जो जो किंग है वो बेसिकली उसको जो है वो कैद कर लिया गया है जेंडा कैसल में, ठीक है। रेजेंडाइल रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम एंटनी डी मोबैन। शी वांट्स हिम टू मीट हर एज शी हैज इंफॉर्मेशन दैट माइट सेव हिम। रेजेंडाइल को एक खत मौसूल होता है जो कि एंटनी डी मोबैन की जानिब से आता है। शी वांट्स हिम टू मीट हर एज शी हैज इंफॉर्मेशन दैट माइट सेव हिम। उसके पास कोई खबर है, कोई इंफॉर्मेशन है जो वो बताना चाहती है उसको, कि जो उसको हेल्प आउट करेगा उसको बचाने के लिए, ठीक है। रेजेंडाइल मीट्स एंटनी। शी सेज दैट ड्यूक माइकल फोर्स्ड हर टू राइट द लेटर। रेजेंडाइल जब एंटनी से मिलता है तो वो उसको बताती है कि ब्लैक माइकल जो है वो बेसिकली उसने उसको फोर्स किया था, उसको जोर दिया था कि वो ये लेटर लिखे। और शी टेल्स रेजेंडाइल अबाउट द ड्यूक्स प्लान टू टेक ओवर द थ्रोन और एंड मैरी प्रिंसेस फ्लेविया। और फिर वहां पे ही जो है वो एंटनी डी मोबैन जो है वो उसको बताती है ब्लैक माइकल का जो प्लान होता है। वो प्लान क्या होता है? वो प्लान ये होता है कि वो जो किंग का जो थ्रोन है वो उसको ग्रैस्प करना चाहता है और प्रिंसेस फ्लेविया से क्या करना चाहता है? शादी, ठीक है। She urges him to leave at once because three of the famous six are on the way to there to kill him. So यहाँ पर उसको ये बात भी बता दी जाती है, वो बता देती है कि जो फेमस सिक्स हैं उसमें से 3 लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं उसको मारने के लिए, रेजेंडाइल को। तो वो उसको बताती है कि उसको जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए। दे अराइव एंड फाइट ब्रेक्स आउट। होता ये है कि उसी दौरान जो है उनकी फाइट भी हो जाती है, मगर रेजेंडाइल जो है वो भागने में कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें ये बात जो है वो पता चलेगी। चैप्टर नंबर 12, who is going to read chapter number 12 from that side? Yes, from the last, yes, the last corner. कौन है ये? Yes, आप। The marriage will shortly take place. The next afternoon, Sept informs Resendale that the Duke, his 3 men, and Anthony have left the city for Zenda. During a dance that night, both Resendale and the princess confess their love for each other. Resendale realizes that she really loves him. Rodolph Resendale and not the king. He wants to tell the princess the truth, but Sept stops him. The news about the proposal spread. The people are happy and they cheer for the couple. And they cheer for the couple. The next afternoon, Sept informs Zendile that the Duke is his 3 men, Anthony, have left city for Zenda. अगली दोपहर जो है सेप्ट रेजेंडाइल को बताता है कि ड्यूक जो है वो अपने 3 लोगों के साथ और आदमियों के साथ और एंटनी जो है वो यानी मोबैन जो है वो ये लोग जो है सिटी फॉर यानी जेंडा के लिए रवाना हो चुके हैं। ड्यूरिंग डांस दैट नाइट, इसी चैप्टर में ये बात भी चलेगी, बोथ रेजेंडाइल एंड द प्रिंसेस कन्फेस देयर लव फॉर ईच अदर। इसी दौरान हमें ये भी पता चलेगा कि रेजेंडाइल और प्रिंसेस एक दूसरे से इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि दे बोथ लाइक ईच अदर। रेजेंडाइल रियलाइजेस दैट शी रियली लव्स हिम। रेजेंडाइल को भी यहाँ पे ये एहसास हो जाता है कि जो प्रिंसेस है वो भी जो है वो शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हिम।
Rudolph Resendale and not the king. He wants to tell the princess that the truth, but Sept stops him. अब चूंकि रिजेंडाइल को इस बात का एहसास हो जाता है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो इसलिए वो कोशिश ये करता है कि किसी तरीके से प्रिंसेस को जो है वो सच बता दे, लेकिन उसको जो सेप्ट है, कौन रोक लेता है उसको? सेप्ट जो है वो उसको मना कर देता है कि नहीं, अभी तुम्हें नहीं बताना उसको, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे बताने से हमारा जो प्लान है वो रिवील हो जाए और हम किंग को सेव ना कर सकें. The news about the proposal spreads, the people are happy and they cheer for the couple. अब ये बात पूरे जो है वो टाउन में फैल जाती है और फिर लोग जो है उस बात को सुनकर बहुत खुश भी होते हैं और बहुत सारी जो है चेयर अप जो है वो देते हैं कपल को. ठीक है, दोनों के कपल को बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं. एंड दे आर आल्सो इंटरेस्टेड, वो भी साथ देखना चाहते हैं दोनों को. Chapter number 13, please read out chapter number 13. Who's going to read? अभी तक पढ़ा किसने नहीं है वो पढ़ ले जरा. चलें पढ़ें भाई, मैं आप किसी का नाम नहीं लूंगा, खुद ही पढ़ें. Therefore, honor Resendale Yes, seemed very good. torn between his love for Flavia and being honorable to the king. He decided to rescue the king. Resendale, Sept, and Fritz head to Zenda with 10 other men. Sept spreads the news that they are going hunting near Zenda before leaving. Resendale tells Marshal Stragens to help rule the country until Princess Flavia is crowned queen. If anything happens to the king, Resendale and his men leave for the castle of Linium. ठीक है. Resendale feels torn between his love for Flavia and being honorable to the king. अब चूंकि Resendale is also honorable to the king, वो बहुत ज़्यादा वफादार होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसके साथ ईमानदारी के साथ पेश आना चाहते हैं किंग के साथ. ठीक है, और मगर उसी दौरान जो है वो उसको ये भी मसला दरपेश होता है कि उसको जो है वो डेफिनेटली बात है कि फ्लेविया में इंटरेस्ट है. सो ही डिसाइड टू रेस्क्यू द किंग. तो इन दी एंड वो डिसाइड ये करता है कि भाई उसके पास ऑप्शन तो ये भी होता है ना कि ही हैज एन ऑप्शन दैट कि वो किंग बनकर रहे, कौन पहचानता है वो किंग है वो सिवाय सेप्ट के. ठीक है, लेकिन वो इस चीज का फायदा नहीं उठाता वो. ठीक है, यहाँ पे तो उसके पास दोनों चीजें आ रही थी ना, एक तो किंगशिप आ जाती अगर वो छुपा के रखता, प्लस उसके साथ जिसमें वो इंटरेस्टेड है वो भी उसको मिल जाती. बट डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट्स, इसके बरक्स उसने जो काम जिसके लिए उसको सौंपा गया था उसने उसी को अंजाम दिया. वो ऑनरेबल था किंग से, तो यानी कि वो बहुत ज्यादा लॉयल था किंग से, और उसने जो है वो बजाय इसके कि वो किंग बनकर बैठा रहता, उसने सोचा कि वो किंग को बचाएगा जाके. Resendale, Sept and Fritz head to the Zenda with the 10 other men. Resendale जो है अपने 10 लोगों के साथ जो है वो Zenda के लिए रवाना होता है. Sept spreads the news that they are going hunting near Zenda. Sept इस बात को स्प्रेड कर देता है अतराफ में कि भाई हम लोग जो है वो Zenda की तरफ शिकार के लिए जा रहे हैं. ठीक है, Before leaving, Resendale tells Marshal Stragens that to help rule the country until Princess Flavia is crowned queen if anything happens to the king. इसी दौरान जब वो जा रहे होते हैं, Resendale जो है वो मार्शल स्ट्रेंजेस को बोल देता है कि भाई जब तक मैं वापस नहीं आता तो आप प्रिंसेस फ्लेविया के साथ जो है वो यानी कि प्रिंसेस फ्लेविया की जो है मदद करेंगे जब तक कि वो उसको जो क्राउन है क्वीन का उन्हें पहनाया नहीं जाता, तब तक आप उसकी मुल्क को रूल करने में उसकी मदद करते रहेंगे. इफ एनीथिंग हैपेंस टू द किंग, Resendale and his men leave for the castle of Talleyrand. ठीक है, Resendale और उसके जो साथी होते हैं वो सब जो है वो Talleyrand कैसल होता है वहां के लिए रवाना हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज द चैप्टर नंबर 13 एंड वी विल स्टॉप हियर. और इसके बाद आई वांट यू ऑल टू प्लीज रीड ऑल दीज चैप्टर्स. तमाम ये चैप्टर्स जितने हैं इनको एक दफ़ा अपने एंड से रीड कर लें ताकि स्टोरी जो है प्लॉट आपका जो है वो क्लियर हो जाए. प्लस वन मोर थिंग, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको आई गिव यू सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस नॉवेल. ठीक है, जिसकी आपको जब आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई होंगी थोड़ा सा प्लॉट आपके माइंड के अंदर होगा तो क्वेश्चन आंसर्स को समझना थोड़ा डेफिनेटली सी बातें आसान होगी. ठीक है,
वन बाय वन, और प्लेजर रीडिंग के लिए आप लोग नॉवेल को जो है वो पढ़ते रहें, ठीक है, चैप्टर वाइज से नॉवेल उठाएं और उसको रीडिंग करते रहें, ठीक है। तो वी विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन सो फार? सवाल है?